نگر ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹیٹوال میں ماں شردھا دیوی مندر کا ورچوئل طریقے سے کیا افتتاح، کہا شاردا پیٹھ بھارت کے ثقافتی، مذہبی اور تعلیمی ورثے کا ایک تاریخی مرکز۔ ٹیلی کام ٹیکنالوجی نہ صرف بھارت کی قوت بلکہ ملک کو بااختیار بنانے کا ایک مشن، وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں کشمیر سمیت شمالی بھارت کے کئی علاقوں میں کل رات زلزلے کے شدید جھٹکے، تاہم کسی مالی یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں، اور پانی کے عالمی دن کے موقع پر متعدد تقریبات کا اہتمام۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے ٹیٹوال علاقے میں ایل او سی کے نزدیک نئے تجدید شدہ شاردا ماتا مندر کا آج افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی رسم مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ورچوئل طریقے سے انجام دی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مندر کا افتتاح نئی صبح کا آغاز اور شاردا ثقافت کو زندہ کرنے کی ایک جستجو ہے۔ انہوں نے کہا کہ مندر کے افتتاح سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں شاردا پیٹھ کو بھارت میں علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور ملک بھر کے اسکالر یہاں روحانی علوم کی تلاش میں آتے تھے۔ امت شاہ نے کہا کہ شاردا پیٹھ بھارت کے ثقافتی، مذہبی اور تعلیمی ورثے کا ایک تاریخی مرکز رہا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ کرتارپور کوریڈور کی طرح مرکزی سرکار شاردا پیٹھ کو عقیدت مندوں کے لیے کھولنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ آج ہی کے دن ہم سب کا نیا ورष شروع ہوتا ہے اور اسی نئے ورष کے شبھ دن پر آج پنہ نرمت ماتا شاردا کا مندر کی اب آج سے شردھالو کو لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ سمپورن بھارت کے شردھالوؤں کے لیے بہت شبھ سنکیت ہے۔ اب ماں شاردا کی کرپا سمپورن بھارت ورش پر اویرت روپ سے یوگوں یوگوں تک یہاں سے وترت ہوتی رہے گی۔ میں آج یہاں پر آ تو نہیں پایا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، پرنتو نشچت روپ سے جب بھی میں جموں کشمیر آؤں گا میرے دورے کی شروعات میں پنہ نرمت ماتا شاردا دیوی کے مندر میں شیش جھکا کر ہی کروں گا۔ آج یہاں پر جب سبھی وقت آئے ہیں، رویندر پنڈتا جی نے کہا ہے کہ کرتارپور کوریڈور کے پیٹرن پر شاردا پیٹھ کو بھی جلدی سے یاترا کے لیے کھول دیا جائے۔ بھارت سرکار نشچت ہی اس دشا میں پریاس کرے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ سماجی اور اقتصادی تبدیلی کے اپنے عہد کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی سرکار نے جموں کشمیر کے تمام شعبوں بشمول ثقافت کی تجدید میں پہل کی ہے، جس کے تحت 123 شناخت شدہ مقامات پر منظم بحالی اور مرمت کا کام جاری ہے۔ ان میں بہت سے مندر اور صوفی مقامات بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے تمام فلیگ شپ اسکیموں کو جموں کشمیر میں لاگو کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ستائش کی اور کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں منوج سنہا نے جموں کشمیر میں صنعتی سرمایہ کاری لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایل او سی کے نزدیک قائم ماں شاردا مندر کی افتتاح سے قدیم تیرتھ یاترا کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات دے رہے ہیں کپواڑہ سے ہمارے نمائندے۔ دریائے کشن گنگا کے کنارے واقع ٹیٹوال میں آج اس وقت کثرت میں وحدت، مذہبی رواداری اور آپسی بھائی چارے کے مناظر دیکھنے کو ملے جب ڈپٹی کمشنر کپواڑہ اور ایس ایس پی کپواڑہ کی موجودگی میں ٹیٹوال کے مقامی سرپنچ عبدالرشید کھوکھر نے نو تعمیر شدہ شاردا یاتری مندر کی افتتاحی تقریب کے دوران مندر کے احاطے کا باہری دروازہ کھولا۔ اس کے بعد 4 دروازے 4 مٹھوں کے نمائندوں نے کھولے اور اس طرح 75 سال کے وقفے کے بعد مندر کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر ملک کے مختلف حصوں سے سینکڑوں شردھالو این او سی کے قریب ٹیٹوال پہنچے تھے، جن میں بڑی تعداد میں کشمیری پنڈت بھی شامل تھے۔ ٹیٹوال میں ضلع انتظامیہ نے اس تقریب کو لائیو اسٹریم کے ذریعے دہلی میں وزیر داخلہ کے دفتر اور راج بھون جموں کے ساتھ براہ راست جوڑا تھا۔ اس دوران ٹیٹوال اور کرنا کے مقامی لوگوں نے شردھالو کا جگہ جگہ استقبال کیا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شردھالو بھی مقامی لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ٹیٹوال کپواڑہ سے آل انڈیا ریڈیو نیوز سری نگر کے لیے میں رفیق احمد۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत में नए बैनुल-अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने भारत 6G विजन दस्तावेज की नकाब कुशाई की और 6G तहकीक और तरक्की के मुतल्लिक टेस्ट बेड और कॉल बिफोर यू डिग ऐप का आगाज किया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क डिजिटल इनकलाब के अगले कदम की तरफ बढ़ रहा है और भारत का डिजिटल मॉडल हमवार, महफूज, शिफाफ, भरोसेमंद और परखा हुआ है। मुल्क में 5G खिदमत की तेजी से तौसी पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत 5G खिदमत शुरू करने वाले दुनिया के सबसे तेज तरीन मुल्कों में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि 5G खिदमत 120 दिनों के मुख्तसर अरसे में 125 शहरों और 350 अजला तक पहुंच चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी न सिर्फ मुल्क के लिए ताकत का एक तरीका है बल्कि ये बाइख्तियार बनाने का एक मिशन है। उन्होंने कहा कि डिजिटल शमूलियत की रफ्तार को बढ़ाने के लिए पिछले 9 सालों में कई इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में 2014 से पहले 6 करोड़ ब्रॉडबैंड सार्फिन थे जो अब 80 करोड़ तक पहुंच गए हैं। डिजिटल इंडिया पहल का जिक्र करते हुए टेलीकम्युनिकेशन के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पहल से मुल्क की एक कसीर आबादी मुस्तफीद हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पेचीदा मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है। नई बैनुल-अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर नई दिल्ली से काम करेगा। ये भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान की खिदमत करेगा। इससे अक़वाम के दरमियान हम आहंगी बढ़ेगी और खित्ते में बाहमी फायदेमंद इक़्तिसादी ताउन को फरोग मिलेगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और शुमाली भारत के कई इलाकों में कल रात 10:17 पर ज़लज़ले का शदीद झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.5 थी। इसका मरकज शुमाली अफगानिस्तान के बदख्शां सूबे के नजदीक हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिले में था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ज़लज़ले की वजह से कम अज कम 13 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतला है। ज़लज़ले की वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचा है और लोग घबराहट की वजह से सड़कों पर निकल आए। ज़राए के मुताबिक 9 अफराद पाकिस्तान में जबकि 4 अफराद अफगानिस्तान में हलाक हुए हैं। खबरों के मुताबिक मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। ज़लज़ले के ये झटके भारत के अलावा तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में महसूस किए गए। दरियासना जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। शदीद झटके की वजह से कई इलाकों में लोग घरों से बाहर आकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए और कई जगहों पर बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान रात देर गए तक सड़कों पर नजर आए। आज पानी का आलमी दिन है। पानी के आलमी दिन की बुनियादी तवज्जो 2030 तक सबके लिए पानी और सफाई मींस पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए इक़दामात की तरगीब देना है। ये दिन मीठे पानी की अहमियत पर भी तवज्जो मरकूज करता है और मीठे पानी के वसाइल के पायदार इंतजाम की वकालत करता है। इस साल पानी के आलमी दिन का असल तवज्जो पानी और सफाई के बहरान को हल करने के लिए तेज रफ्तार तब्दीली पर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और दीगर प्रोग्राम और स्कीमें नाफिज की ताकि पानी के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बढ़ाया जा सके। भारत में कल की तारीख तक 11 करोड़ 49 लाख घरानों को नल के जरिए पानी फराहम किया गया है। मुल्क में अक्टूबर 2014 से तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 11 करोड़ से ज्यादा बैतुल खुला तामीर किए गए हैं। इस दिन की मुनासिबत से कुलगाम जिले में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने अवाम से गुजारिश की कि वो पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें और साथ ही आबी ज़खायर को महफूज रखें। तकरीब के दौरान पानी के मुनासिब इस्तेमाल के हवाले से शुरका ने हलफ भी लिया। बाद में बच्चों की तरफ से भी एक रैली निकाली गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 9 रोजा नवरात्रा का त्योहार शुरू हुआ है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में मंदिरों और तीर्थ स्थापनों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। त्रिकुटा पहाड़ी पर वाक़ा श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर को बाहर से मंगाए गए रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है।
चित्रा नवरात्रा के मौके पर आज मंदिर में वैदिक और मजहबी मंत्रों के साथ ही छठ चंडी महायज्ञ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर श्राइन बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग ने और बोर्ड के दीगर मेंबरान के अलावा काफी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सहूलत के लिए खास इंतजाम किए हैं। दिव्यांग यात्रियों की सहूलत के लिए बोर्ड ने तमाम खदमात मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नवरात्रा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन, हम आहंगी, भाईचारे को फरोग देने और अपनी रूहानी विरासत को कायम व दायम रखने के लिए ये त्योहार हमें एक मौका फराहम करता है। उन्होंने दुआ की कि ये त्योहार अमन, खुशहाली और हम सब के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद लेकर आए। 3 अक्टूबर 2014 से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए हर महीने की आखिरी इतवार को मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से इजहार ख्याल करते हैं। अगले महीने इस प्रोग्राम का 100वां शुमारा नश्र हो रहा है। आकाशवाणी ने मन की बात प्रोग्राम के उन चुनिंदा प्रोग्रामों से इक़्तिसाबात का एक खाका पेश करने का सिलसिला 15 मार्च से शुरू किया है, जिनसे मुल्क को एक नई जहत मिली है। सरहदें और जमीन मुल्कों और इंसान को अलहदा करती हैं, लेकिन जल्द से तमाम मुल्क और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2016 के अपने मन की बात प्रोग्राम में समंदरों की अहमियत का जिक्र किया था। भारत का सामुद्रिक इतिहास स्वर्णिम रहा है। संस्कृत में समुद्र को उदधि या सागर कहा जाता है। इसका अर्थ है अनंत प्रचुरता। सीमाएं हमें अलग करती होगी, जमीन हमें अलग करती होगी, लेकिन जल हमें जोड़ता है, समुद्र हमें जोड़ता है। समंदर से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं, किसी से भी जोड़ सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले विश्व भ्रमण करके, विश्व व्यापार करके इस शक्ति का परिचय करवाया था। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने आज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का दौरा करके स्टेशन के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुलाजमीन से भी बातचीत की। याद रहे कि सीईओ ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात के अलावा दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के कामकाज का जायजा भी लिया था। जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर सांबा जिले के चमलियान इलाके में कल रात एक मुश्तबा ड्रोन पर सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ की नजर पड़ने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई। बीएसएफ के चौकस अमले ने रात तकरीबन 2:30 बजे इस पाकिस्तानी ड्रोन पर 2 दर्जन से ज्यादा फायर किए। अलबत्ता ये मुश्तबा ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। चमलियान, सपाल और नारायणपुर सरहद की बाहरी चौकियों पर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस ड्रोन से किसी तरह के हथियार या नशीली अशिया तो नहीं गिराई गई हैं। जम्मू कश्मीर में आज हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में ज़ियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में खुसूसी मजालिस का इनेकाद हुआ, जिस दौरान उलमा ने हजरत गौस पाक की तारीख साज इस्लामी कारनामों और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली। राजस्थान के शहर उदयपुर में सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के दूसरे दिन एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका अनवान पायदार तरक्की के मकासद के लिए मालिये को अहल बनाना था। मीटिंग का मकसद G20 मुल्कों के माबैन तालमेल में बेहतरी लाना और देरपा तरक्की के मकासद के लिए मालिये की सिफारिशात करना है। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।